बस यही कहना चाहूँगा कि लाइक व्हेन वी कंसीव्ड द आइडिया, लाइक जो भी आया था कि ये करना है ऐसा, सो आई थॉट के वी हैव टू पैकेज इट वेरी वेल। और उसकी जो पैकेजिंग है वो सबसे बड़ी जो फिल्म में होती है वो अंदर जो होती है उसकी म्यूज़िक होती है, और म्यूज़िक का बैकग्राउंड होता है और साथ साथ जो उसके ट्रैक्स हैं वो OST है बेसिकली। तो आई वॉज चैटिंग अप विद दिस गाय फ्रॉम Matthias Dukes, he's a friend of mine. He's done Peeply Live and Dangal. He's doing Dangal background score. He's done Peeply Live and Finding fans. तो उसके बाद मेरी बात हुई उससे और मैंने उससे कहा कि लाइक ये फरमाइश है, तो उसने कहा आई लव टू वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट। और एक खासियत इसकी ये है कि हमने यहाँ से 90% फिल्म विदाउट ब्रीफ मैंने उसको भेजी। उसने मुझे बोला कि तू मुझे ब्रीफ मत देना, एंड इट डजंट मीन। तो उसने सिर्फ फ्रेम्स में इनकी एनर्जी देख के, अक्षय की एनर्जी देख के, बाकी सब की एनर्जी देख के, एक्टर्स की देख के उसने बैकग्राउंड बनाया। और एक भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जो सिचुएशन को मैच ना करता। ऐसा लग रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था उसके साथ साइमल्टेनियसली वो बैकग्राउंड बना रहा है। आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ द सेम, आई शो इट टू यू। वही वाला भाई, which goes on to say that feelings don't have a language. Music has no barrier, nothing. In the sense, he was just watching it and he was playing his guitars, his violins. He's a world music guy. और acoustic से उसने सारा कुछ बनाया, live instrument, live sound है, no digital sound in it. और we worked on the script for 20 days. In the sense, we wrote it in 20 days flat. Me and Pankaj Matta. When for music, we worked on it for 6 months to come up with these tracks. And then I also suggested one Ragini, which Vipin Bhatt. तो राजा की राजदुलारी की ये होनी ही चाहिए। मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं, भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं। It goes very aptly with our characters. You know, like it's actually Shivji singing to Parvati. कि मेरे साथ मत आ यार, मेरे पास कुछ नहीं है, तू राजा की तू जाना, तू बागों की कोयल है, यहाँ बर्फ पड़े हरी घास नहीं। तो that I felt very well in our relationship, and also it is a very popular about 50, 60, 100 year old thing, folk song. I feel that, you know, a lot of Bollywood movies are not based anywhere. They're in a vacuum. They're not specifically based anywhere. If they're based in some exotic location or something like that. Even the people who are there in it, might be in England, but they're speaking in Hindi as if even Angrez are also speaking in Hindi. You know, so a lot of that. So I think the rooted Hindustani stories which directors like Afzal are bringing forth are very, very attractive, at least to me. And they're based somewhere. So the winner here is that it's not a Haryanvi film, but it has got all kinds of dialects within the film. All of us speak different dialects, although we are in the same thing. And that rootedness and the music that comes into it, the language, the thing, I think it is a very, very authentically made film, which I think can compete in world stage. Forget what, you know, TRP ratings these other shows can get you, but on a world stage it's a very, very important film and deals with a very important topic, because no matter where you are, blood is running in your veins. True incidents, yes. करनाल में थे ऐसे पिशाच जो कि रात को निकलते थे खून चूसने। Weaved them, yeah, into a fictitious tale with fictitious characters. But हमने वहाँ नाम भी बदले हैं, obviously वो सेम नाम भी नहीं रख सकते, but काफ़ी हद तक है, उससे इंस्पायर्ड है, और जो कुछ इवेंट्स हुए थे वो वैसी के वैसी हैं। Obviously थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा चीज़ों, but करनाल में एक खासियत है कि करनाल एक तरह से मैं कहूँगा नॉर्थ का एक मेल्टिंग पॉट बन गया है, कि वो पूरा हरियाणा भी नहीं है और पूरा पंजाब भी नहीं। 60-40 का रेशियो है, और वहाँ पे पंजाबियत भी है, मुल्तानी भी है, क्योंकि 47 के बाद रेफ्यूजीज मुल्तान से आए थे, तो एक पूरी कॉलोनी बसी हुई है फोर्ट के अंदर जो मुल्तानीज की है, और जहाँ पे कैंप्स लगे थे, फिर उन्होंने घर मांगे तो गवर्नमेंट ने कहा आप घर यहीं बना दीजिए, जहाँ जहाँ जब सबके कैंप्स लगे। दैट इज़ बेसिकली तरावली, विच इज़ द एड्रेस टू शंकर ऑल्सो। So he lives in a fort. He has a fort to himself. Well, matchbox corner of the fort. But he definitely got the most scenic part, क्योंकि film shoot हो रही थी।
जज्बाती चीज़ बताना चाहूँगा जो ये कभी बताने की वो नहीं करती हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये हमारे जिस दिन पहली वर्कशॉप होनी थी, तो ये कहीं अपनी मीटिंग्स में होंगी, तो जो प्रिपेयर करना था, पढ़ना था, पढ़ के आना था। स्क्रिप्ट मिली नहीं थी मुझे। हाँ, तो स्क्रिप्ट मिली। ये थोड़ी सी सब यही कहते हैं। हाँ, सब यही कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जल्दी थी, ये आई और फिर सबको अपना पार्ट पढ़ना था, और ये जो थी एकदम से वो हो गई कि हाँ क्या ऐसे I was very nervous. तो मैंने तो बस पेज एक बार देखा, पेज खो गए, बाद में- हिंदी नहीं पढ़ पा रही थी, you know, it was, हाँ, I was, तो उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने आपने बहुत झाड़ा हाँ, मुझे। मैंने छाड़ा, तो ये कहती अच्छा मैं अभी बात नहीं कर सकती, अब बात करूँगी, और करके इन्होंने रख दिया। फिर वो इंसिडेंट कैसे आगे ट्रांसलेट हुआ वो ये था कि इन्होंने ठान लिया कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। तो इन्होंने जाके अपनी एक टीम बुलाई, उसमें इनके दोस्त थे सब, तो उन्होंने मुँह ज़बानी पूरी स्क्रिप्ट याद करी, सबके डायलॉग, सबके डायलॉग। मैं भी ऐसे करता हूँ अक्सर, मुझे पूरी पिक्चर में सबके डायलॉग पता होते हैं, मैं सीन में हूँ या नहीं हूँ। This is what happened when he came कि ये सीन है, आज शूट होना है, तो ये बोले अच्छा आप इनकी लाइंस पढ़िए, शंकर की लाइन। मैंने कहा नहीं मुझे याद है, चलो बोलो। तो ये दोनों लाइंस पढ़ रही थी, ये भी पढ़ रही थी, उधर भी पढ़ रही थी, मतलब इसको अलग से भी जब मैंने पूछा तो मैं भी, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो ये कहा कि नहीं मैं मेरी टीम है, साथ बैठ के मैंने कहा करा ये, तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। और फिर उसको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखी। तो कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हम अपने लिए अच्छे होते हैं, तो मुझे इनका हमेशा रोना हमेशा याद रहेगा। बाद में हमेशा ये फ़ोन करती थी, तुमने ये बोला था, ये ऐसे नहीं आप बोलते थे कि गुड, तो मैं बोलती थी नहीं आप ही गुड है, सब आप ही की वजह से हो रहा है। उस दिन की डांट और नहीं, लेकिन ये मतलब ऐसी चीज़ हुई थी। और दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई शूट पे कि बड़ा हाईली इमोशनल सीन था, और ये काफ़ी मतलब एक्साइटेड थी कि करना है ये। एक्साइटमेंट में वहाँ टेम्परेचर वहाँ पे अंदर मेरे ख्याल से पोल्ट्री में 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। अरे भाई कुछ भी था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसमें डेयर की बॉटल्स रखी हुई, वो उबल रही थी। तो सीन करते करते इन्होंने फुटबॉल समझ के एक डेयर की बॉटल पर लात मारी थी इसके, क्या हुआ वो बॉटल, हाँ वो ऐसे फटी, रणदीप भाई के पाँव में घुस गया। ओह गॉड, उसके वीडियो है हमारे पास में। हाँ, अच्छा इस तरह पहले से दिन फिर- शूट कर अरे हाँ मैंने अपना खून भी दिया है, मैं भूल गया मैंने अपना खून भी दिया है। सुनिए, मुझे लगा पहले दिन शूट कर रही हूँ, पैर में कांच घुसवा दिया, लाइंस नहीं बोल पाई, पहले दिन मिली थी, मैंने कहा वेरी बैड इंप्रेशन मीनाक्षी। और फिर उसके बाद ये डॉक्टर भी हैं, तो मतलब फिल्म में तो फिर इन्होंने पूरा डिटॉल से बहुत मल्लम पट्टी की इन्होंने, बहुत करी कि सब दिन रात मिट जाए वो। दिन रात सेवा करने के बाद मैं अगले दिन मैं उठ के तैयार हो गया शूटिंग करने के लिए। मेरे ख्याल सबसे फनी कैरेक्टर पिक्चर में पिया का है, क्योंकि उसकी अंग्रेजी का जो है ना, जो रैपिडेक्स से इन्होंने अंग्रेजी सीखी है, थैंक्स यू, एक प्रोमो है जिसमें बोलती है व्हाट डू यू लाइक अबाउट, ही सेड व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी, सो बोलो लाइन बोलो। अच्छा मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? Your hairs, your smiles, and your eye. मतलब जहाँ पे एस लगाना है वहाँ नहीं लगाती है। Yes, your smile and your eye. It is comes out to a hilarious effect in the movie, hilarious effect. Nice compliment. It's very funny, and the way you know the small town, uncorrupted kind of a girl thing, it's come out very hilarious. और इसमें एक वो भी है, जैसे कि वो होता है ना कि हमारे पहले 90s में होता था कार्ड बहुत दिए जाते थे, तो वो ट्रेंड हल्के हल्के जाके फिर 20 सेंटर्स में भी पहुंचा हर चीज़ के कार्ड मांगे। तो वहाँ पे उस पर एक सीन है जहाँ पे ब्लड से आई लव यू, फिर में वो कहते हैं कि ये ब्लड से लिखा है कार्ड पे, तो उस पर एकदम से वो पलट गई, कहाँ काटे खुद को, उसे नहीं पता नदियाँ बह रही हैं। And I think Rajneesh has done something really different. He's not looking like the really extremely pretty boy lover rose that he's been doing to all effect, working with Vikram Bhatt and all these people. Here I was like, yeah, why you Rajneesh? Yeah, Rajneesh in a cop's role. But then when I saw him in the uniform with his mustache and
tough attitude. I think that's a great, Yes. difference he's created in his performance, and he's turned out really well. Even when I met Afzal, even I was slightly taken aback. Are you sure? You want me to play this? But then I think somewhere once I saw his vision and once I knew that kya chal raha hai film mein, the kind of story it was, I wanted to be a part of it. And I just thought कि यार ये even though it's like a role which is not like a full-fledged, it's a smaller part in the film, but it is a strong appearance, strong role in the film. It is a counterpoint of morality, and when you say Yeah. कि अच्छा we have come from हम लोग गरीब हैं और यहाँ से हैं, हमको एक्सपोजर नहीं है, तो ये बोलता है पिक्चर में कि देखो इसका यही तरीका नहीं है, मैं भी तो पढ़ लिख के अफसर बन गया हूँ। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काउंटर पॉइंट है फिल्म में, जो वहीं का लड़का है, ये भी रोहतक का है, शंकर भी रोहतक का है, तो इन दोनों ने जो अलग अलग रास्ते चुने हैं, तो उसके अंदर एक काउंटर पॉइंट है। इसके पास माँ है, Back balance नहीं है. यू अंडरस्टैंड, शंकर के पास सब कुछ है, इसके पास माँ है। But